Hello my dear students, hope you all are well. Today we are going to start our next topic, that is resistance in series and parallel. Okay, so what is the meaning that resistance in series and parallel? You remember that we have already learnt about Ohm's law, and that we learnt one concept, that is resistance, and after that we learnt about resistance and resistivity, the factors on which resistance depend. And we know one thing, resistivity never depends on the dimensions, resistivity never depends on length, area, like that. It depends on material which we are using to make a resistance. Okay, so I just recall the previous lecture. Now today we are going to learn that what will happen when resistances means number of conductors I am taking are connected in series, or resistances are connected in parallel. I told you previously that conductor doesn't mean it has no resistance. It has resistance, but it has less resistance. Resistors having more resistance. And the third material that we learned, that is insulator, and insulator having infinite resistance. We will learn about only two things, that is, one is conductor and other one will be resistors. So if I am considering any resistor which is connected in series and which is connected in parallel, so first of all you must know what is the meaning of series and parallel connection. So yes, what is series connection? Series connection क्या होता है, and then we will learn what is parallel connection. What is the meaning of series connection बेटा? Series connection होता है when we have number of resistance connected in a circuit end to end. What does it mean? End to end. पहले एक चीज ध्यान से सोचिए, रेजिस्टेंस का आपको मैंने एक सिंबल बताया था, दिस विल बी द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस दैट आई एम गोइंग टू यूज इन दिस लेक्चर. ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस. सो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? सीरीज कनेक्शन में जो कनेक्शन होता है दैट इज एंड टू एंड. एंड टू एंड. ओके, एंड टू एंड का मीनिंग क्या है? व्हाट काइंड ऑफ कंक्लूजन दैट वी विल गेट फ्रॉम द सीरीज कनेक्शन? ध्यान रहे, जब भी आप रेजिस्टेंस को एंड टू एंड लगाएंगे, जब भी आप रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे, तब हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी. If you want to increase the value of resistance, you have to connect that resistance, number of resistances in series. Okay. Now, end-to-end connection का क्या मतलब होता है? Suppose you have two resistance. One is this is R1. Suppose इसका नाम दे देते हैं, इसका कुछ नामकरण कर दिया हमने, that is R1. And other one is, suppose I am taking over here, that is next resistance, that is R2. End to end का meaning क्या होता है? I am just connecting the end of this resistance to the one of the end of the other resistance. Okay, end to end. If I want to join the other third one resistance, you can also join it like this. This will be R3. If I want to join some more, I can join more. Okay, so what will be the benefit that you can get from here? The benefit is, if in any electrical circuit I want to increase the resistance of the circuit, increase the resistance, I'll just connect the number of resistors, how many resistance I have, it depends. तो उस सब को हम क्या करेंगे? end to end join कर देंगे. जैसे ही बेटा हम लोग end to end resistance join करेंगे, उन सब की resistance add हो जाएगी. Okay, what does it mean add हो जाएगी? तो end to end जब आप add करते हैं, तो आपका जो total resistance होता है ना, वो ये होता है R मतलब टोटल रेजिस्टेंस जितने भी आपने लगाए हैं उन सबका टोटल कितना है, दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी आपने रेजिस्टेंस ऐड किए. अब आप देख लीजिए, सपोज आपकी इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो कितना हो गया? 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 5. तो टोटल आंसर आपका कितना आ जाएगा? 5 ओम. 5 ओम मतलब क्या? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से वैल्यू ज्यादा हो गई, isn't it? इंडिविजुअल, जैसे इसकी वैल्यू सपोज मैंने एज्यूम की थी, इसकी वैल्यू है 1 ओम, इसकी वैल्यू है सपोज 2 ओम और इसकी वैल्यू है सपोज 3 ओम. तो इनकी इंडिविजुअल वैल्यू कितनी है? इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1, एंड द टोटल वैल्यू इज 3 प्लस 2 5 प्लस 1 दैट इज 6, नॉट 5, दैट इज 6. तो टोटल वैल्यू हो गई 6.
अब जो आपको टोटल वैल्यू मिलेगी वो हमेशा किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो आपने लिया है उससे ज्यादा होगी। गॉट इट? गॉट इट? समझ में आ गई ये बात? ये होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। वो क्या चीजें हैं? सबसे पहला, मैं अभी आपको सिर्फ सीरीज के बारे में बता रही हूँ, पैरेलल नहीं, पहले सीरीज को समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने ही हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट इसमें होता है बेटा कि जब भी आप रेजिस्टेंस लगाएंगे किसी भी सर्किट में, बेसिकली आप वो रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्ट करेंगे? किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। जब आप किसी बैटरी के साथ रेजिस्टेंस लगाएंगे तो जो वोल्टेज होगी जो वो बैटरी से आ रही है, वोल्टेज, वो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग होगी। वोल्टेज will be different for every resistor. It depends, किस चीज पर डिपेंड करेगा? It depends on the value. It depends on the value. Value of what? रेजिस्टर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि V की वैल्यू कितनी होगी वहां पे, वोल्टेज की वैल्यू। सेकेंड पॉइंट क्या आपको दिमाग में रखना है बेटा? आपको अगर ये पॉइंट्स याद रहेंगे ना, आई एम टेलिंग यू 110% आपका कभी न्यूमेरिकल गलत नहीं हो पाएगा, ठीक है? एंड इट्स 110% श्योरिटी आई एम गिविंग यू कि एक क्वेश्चन सीरीज पैरेलल का बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, कोई इफ एंड बट नहीं इसमें। ओके, सो सेकेंड पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है वो क्या? current will remain same in the circuit, ठीक है? सर्किट को यूजुअली आई जस्ट राइट CKT एज अ शॉर्ट फॉर्म, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये CKT क्या लिख दिया मैम ने। ओके, सो दिस इज सर्किट। अभी तो राइट नाउ आई हैव रिटन जस्ट सर्किट कंप्लीट। तो करंट विल रिमेन इन द सर्किट, करंट पूरा सर्किट में जितना बैटरी से उधर से आ रहा है का पूरा सर्किट में हमेशा करंट सेम रहेगा, और वोल्टेज क्या होगी वो अलग अलग होगी हर एक रेजिस्टेंस के अंदर। ये दो पॉइंट समझ में आ गए सभी को? अब जो आपको बात मैं बताने जा रही हूं दैट इज, आपको जैसे मैंने ये बात बोली ना, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट यू विल गेट, दैट यू विल ऑब्जर्व। आप कैसे ऑब्जर्व करोगे देखना, इसके लिए मैं एक सर्किट डायग्राम लूंगी, सर्किट डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी दैट यू विल गेट दिस वैल्यू। ये चीज आपको भी दिखेगी अभी देखना। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग दैट सीरीज कनेक्शन हम लोग अभी लर्न कर रहे हैं, अभी सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलिए, अब मैं एक बैटरी ले रही हूँ। मैंने क्या लिया? एक बैटरी ली, बैटरी का सिंबल है रिमेंबर, और इस बैटरी में मैंने दो रेजिस्टेंस लगा दिए बैटरी के साथ सीरीज में, और यहाँ पर मैंने एक लगाई की। आई टोल्ड यू ना सर्किट कैसे बनाते हैं। तो ये हमारी हो गई की के, ये बैटरी हो गई, और ये हुआ R1, ये हुआ R2, और इस बैटरी का जो वोल्टेज है सपोज V वोल्ट है। वोल्टेज कितना है? V वोल्ट है, ठीक है? तो आई टोल्ड यू, देखो अब इस पॉइंट को पढ़ो, वोल्टेज विल बी डिफरेंट फॉर एवरी रेजिस्टर। अगर हमने V यहाँ से दिया है तो यहाँ पर 1 वाला है, इसके अक्रॉस V1 हो गया, और 2 वाला इसके अक्रॉस V2 हो गया। सेकेंड पॉइंट पढ़िए, करंट विल रिमेन सेम। जो यहाँ से करंट कहाँ से जाता है? पॉजिटिव से। जो करंट जाएगा I वो सेम जाएगा पूरे में। यहाँ से करंट I जा रहा है और यहाँ से करंट I वापस आ रहा है। क्लियर? ठीक है, चलिए इसको मैं छोटा सा डेरिवेशन की फॉर्म में आपको बता रही हूँ, उससे आपको क्लियर होगा कि क्या कर रहे हैं आप। देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बताता है? V इज इक्वल टू RI। पता है सभी को? V, इसमें स्मॉल I लिया है तो स्मॉल ले लीजिए, या यहाँ पर भी कैपिटल ही कर देते हैं हम लोग, ठीक है? तो लीजिए V इज इक्वल टू RI। कौन डिफरेंट है? V डिफरेंट है तो मैं V की फॉर्म में लिखूंगी। सपोज आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V1 व्हाट आई शुड राइट? R1, और करंट कितना आ रहा है इसमें? I, तो R1I। गॉट इट? चलिए सेकंड लिखिए, सेकंड वाले के लिए V2 इज इक्वल टू R2I।
ठीक है। और आई टोल्ड यू कि अच्छा एक चीज और आपको दिमाग में रखनी कि हमने अगर V यहां से वोल्टेज दी है ना, तो सर्किट में जितनी भी ड्रॉप होगा अल्टीमेटली वो पूरा ड्रॉप इस V के बराबर होगा। मतलब V अगर आपने सर्किट में दिया है तो दैट V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। ऐसा नहीं कि बीच में से कोई चीज गायब हो जाएगी या कोई चीज आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी या कुछ पार्ट डिस्ट्रॉय होगा, नो। तो व्हाट वी विल टेक, वी आर कंसिडरिंग आइडियल केसेस इन दिस केस, ठीक है। तो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। नाउ इन दोनों का टोटल लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड दीज टू, इसको हटा देते हैं हम। होप यू हैव रिटन दीज 2 पॉइंट्स। नहीं लिखे हैं तो वीडियो पॉज करके एक बार लिख लेना and make your own notes by using this video, okay? So adding these two, adding equation 1 and equation 2. चलिए, what we will have, V1 plus V2 is equal to R1I plus of R2I, right? I can be taken out, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया, हमारे पास अंदर कौन है, R1 plus R2 और यहाँ है V1 plus V2. I told you V1 plus V2 is equal to V. So this is equal to V, and V is equal to Ri. So what I can put, Ri is equal to I R1 plus R2. I से I हमारा कैंसिल हो गया, so R will be equal to R1 plus R2. This is our result. I told you, राइट? इनिशियली यही बताया था मैंने आपको, और एक सर्किट से लेकर के ये चीज मैंने आपको प्रूव भी करके दिखाई कि जो R होगा वो R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। समझ में आ गया सभी को? चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं इसके ऊपर, तो आपको क्लियर होगा कि कैसे हमें आंसर निकालना होता है, ठीक है। सपोज ऐसा ही एक सर्किट बनाऊंगी मैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, सीरीज कनेक्शन का। चलिए जी, सीरीज कनेक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं एंड होप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि पहले बिल्कुल बेसिक स्टेप उठा रही हूँ मैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसके थोड़े एडवांस न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन में ले रही हूँ एक सीरीज कॉम्बिनेशन का। आपके पास ये एक बैटरी लगी है और ये साथ में की लगी है, की क्लोज्ड है, और आपके पास जो है 2 रेजिस्टेंस, जैसे अभी मैंने सर्किट बनाया था वही सर्किट है। दिस इज 2 ओम, दिस इज 5 ओम, 5 ओम ले लीजिए या इसको ले लेते हैं हम 4 ओम, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज 6 वोल्ट। ओके, वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट। व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट, इफ आई आस्क फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, टोटल करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। टोटल करंट कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें टोटल रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए, तभी हम टोटल करंट फाइंड आउट करा पाएंगे। ये सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस होगी आपकी कितनी, R1 प्लस R2। अगर मैं इसको कहूँ R1 और इसको कहूँ R2 तो कितना आ गया टोटल रेजिस्टेंस, 2 प्लस 4, आंसर आ गया 6। 6 क्या, 6 ओम, ठीक है। अब मुझे निकालना है, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड आउट टोटल करंट। टोटल करंट के लिए बेटा आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालनी जरूरी थी, है ना। तो टोटल करंट निकालते हैं ना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बताता है भाई, ओम्स लॉ बताता है V इज इक्वल टू आर आई। V की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर 6 वोल्ट, 6 इज इक्वल टू R हम निकाल चुके हैं क्वेश्चन के अंदर 6 इंटू आई। तो I की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 6/6, 6/6 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। 1 क्या, 1 एम्पियर। समझ में आई बात? दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट आई टोल्ड यू। हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक स्टेप से उठाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है। तो ये हमने किया, एक सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। अब मैं आपको पैरेलल का कॉन्सेप्ट बताती हूँ, फिर पैरेलल का ऐसे ही क्वेश्चन बताएंगे, और फिर हम नेक्स्ट जो क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी विल लर्न विद द सीरीज एंड पैरेलल। ओके, चलिए जी, अब आपके साथ हम डिस्कस करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन था, अब हम करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं। चलिए जी, ओके, नाउ वी हैव पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब समझिए सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जो कनेक्शन करते हैं वो करते हैं कैसे है, एंड टू एंड नहीं करना है, अभी एक पॉइंट से मल्टीपल रेजिस्टेंस निकालने हैं,
पहले हम क्या कर रहे थे, एक खत्म हुआ तब दूसरा लगाया, दूसरा खत्म हुआ तब तीसरा लगाया, वो सीरीज होता है। पैरेलल में ऐसे नहीं करते। पैरेलल में आपको एक सिंगल पॉइंट से मल्टीपल रेजिस्टेंस लगाने होते हैं। ये एक सिंगल पॉइंट है, इससे एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए, फिर इससे दूसरा लगा दीजिए, फिर इससे तीसरा लगा दीजिए। तो और अगर ये सारे जाकर के एक पॉइंट पर मिल गए, ये होता है पैरेलल। गॉट इट? इस तरह के कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल। मींस इन सबके सिरे, इन सबका हर एक एंड आपस में जुड़ा हुआ हो, इस तरह के कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल कनेक्शन हुआ। सीरीज कनेक्शन में आई टोल्ड यू कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता था। पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। जो भी इसकी इंडिविजुअल वैल्यू होगी ना, आंसर हमारा हमेशा उससे कम आएगा। ठीक है, आंसर हमारा हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया था, सीरीज के केस में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लेते हैं। व्हाट वी विल टेक इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। देन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसको कैसे निकाला जाता है? टोटल रेजिस्टेंस that we will take reciprocal, total resistance will take reciprocal of the total is equal to sum of reciprocals of all individual resistance। क्या करना है? sum of reciprocals of all individual resistance। ये पैरेलल को करने का तरीका होता है। अब जैसे उसमें कुछ बातें थी याद रखने के लिए, इसमें भी दो पॉइंट्स है याद रखने के लिए। अगेन पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं? सबसे पहला पॉइंट बेटा आपको क्या याद रखना है इसमें? पहले केस में क्या था, सीरीज में वोल्टेज विल बी डिफरेंट। इसमें उल्टा है, वोल्टेज विल रिमेन सेम इन द रेजिस्टेंस connected in parallel। ओके, वोल्टेज क्या रहेगी भाई? वोल्टेज सेम रहेगी। पिछले केस में क्या था, वोल्टेज डिफरेंट थी। वोल्टेज विल रिमेन सेम इन द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। कितनी वोल्टेज? वही वोल्टेज जो बैटरी से आ रही है, बिल्कुल वही रहने वाली है। ठीक है, सेकेंड वो डिपेंड करेगा, हो सकता है कि सर्किट में कुछ मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो तो चेंजेस आते हैं, आपको बताएंगे कैसे होता है वो। ठीक है, आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और पैरेलल में करंट क्या हो जाता है भाई। फिर उसमें सीरीज में क्या याद रखना था? सीरीज में आपको दिमाग में बिठाना है कि वोल्टेज अलग अलग होती है और करंट सेम होता है। इसमें वोल्टेज सेम होती है और करंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो करंट विल बी डिफरेंट in parallel resistances। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलिए, जैसे मैंने उसको छोटा सा डेरिवेशन की फॉर्म में बताया था, ऐसे ही इसको भी आपको एक डेरिवेशन की फॉर्म में बताती हूँ, जिससे हमारा ये आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए एक मैं आपको लेकर के बताती हूँ। क्या, पहले एक सर्किट लेते हैं पैरेलल कनेक्शन के लिए। चलिए एक सर्किट लेते हैं। सर्किट में क्या लें? पैरेलल बताया ना आपको मैंने। पैरेलल लिया तो ये हमने लगाई बैटरी, बैटरी के साथ लगाई की को डॉट बीच में लगाया, मतलब क्लोज की है। और पैरेलल के केस में इस तरीके से हम रेजिस्टेंस दिखाते हैं इन जनरल। आपको मैंने अभी बताया था कि रेजिस्टेंस जो होते हैं उनका एंड, देखो इसका एंड इस पॉइंट से जुड़ा है, इसका एंड भी इस पॉइंट से जुड़ा है, ऐसे इसका इधर से जुड़ा है, इसका भी इधर से जुड़ा है, मतलब ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, दिस इज R1, दिस इज R2। यहाँ से V वोल्टेज हमने दी, ये हमने एक K नाम की एक हमने की लगाई जो कि क्लोज है। क्लोज मतलब करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से I करंट फ्लो कर रहा है। आई टोल्ड यू वन थिंग, देखो उधर वोल्टेज विल रिमेन सेम इन द सर्किट। यहाँ पर भी V वोल्टेज है, यहाँ पर भी V वोल्टेज, जो V वोल्टेज हमने दिया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पढ़िए, करंट विल बी डिफरेंट इन पैरेलल कनेक्शन। करंट विल बी डिफरेंट, अगर हमने I दिया है तो हो सकता है यहाँ पर कुछ I1 जा रहा हो, और देखो यहाँ से यहाँ पे डिवाइड हो रही है चीज़ें। यहाँ तक करंट I आया, यहाँ इसको दो रास्ते दिख रहे हैं। अब क्या करें, ये करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आधा आधा होगा, वो अलग अलग, वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर।
ऐसा नहीं है कि यहाँ से हमने मान लो अगर 10 एम्पियर करंट दिया है तो इसको यहाँ 2 रास्ते दिखे, आधा इधर चला जाए आधा इधर चला जाएगा। नो, ऐसे नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि जिस रास्ते में जो ये करंट जा रहा है यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है कि कम है। ज़्यादा है तो करंट कम जाएगा और कम है तो करंट ज़्यादा जाएगा। आई टोल्ड यू लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, हमेशा इंसान वो रास्ता चुनता है जहाँ पर ऑब्स्टिकल्स कम होते हैं। करंट भी ऐसे ही करता है, करंट भी वही रास्ता चुनेगा, वही रास्ता चूज करेगा जहाँ उसको कम से कम ऑब्स्टिकल मिलेगा। ऑब्स्टिकल मतलब रेजिस्टेंस हमारी फिजिक्स की लैंग्वेज में, राइट। चलिए, तो यहाँ से अगर मान लो I1 गया तो यहाँ से हमारा I2 गया, ठीक है। चलिए, हमारा ये पॉइंट्स के हिसाब से हमने ये चीज़ बना ली। अब हमें क्या करना है, ये वाला आंसर निकालना है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। चलिए, अब मैं आपको वो एक आंसर निकाल के बताती हूँ कि कैसे हम इस डेरिवेशन को समझ सकते हैं इसके थ्रू। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, हमेशा देखो जो चीज़ अलग हो रही होती है ना, हम उस चीज़ पे लेकर चलेंगे। हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ के हिसाब से बच्चे हमारे पास V इज इक्वल टू RI होता है। इसमें चेंज कौन हो रहा है, I। तो कैन आई राइट I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। अब फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए लिखिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 विल बी इक्वल टू V अपॉन R1। देखिए इधर V ही है, यहाँ भी V है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। I2 लिखें, I2 क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R2, क्योंकि हमें पता है ना I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। तो I1 इज इक्वल टू V बाय R1, I2 इज इक्वल टू V बाय R2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, इक्वेशन 2 हो गई, 3 हो गई। अब मेरा जो टोटल करंट है, ये वाला टोटल करंट, ये 2 पार्ट में टूटा था, I1 और I2 में, दोनों को ऐड कर दें। तो 2 और 3 इक्वेशन नंबर को ऐड करिए, इक्वेशन नंबर 2 3 को, सिंपल में लिख रही हूँ, इक्वेशन 2 को मैंने 3 में ऐड कर दिया, ठीक है बेटा। अगर मैं 2 को 3 में ऐड कर रही हूँ, व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू गेट, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। तो I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R1, I2 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R2, और I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R। हमारा V कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ये मैंने V कॉमन निकाला और कैंसिल कर दिया, ठीक है। देखो क्या बच गया आंसर हमारे पास, आंसर क्या आ गया यहाँ से देखिए, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। आ गया आंसर, आ गया। यही हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये होता है जब हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। डन, समझ में आ गई बात अच्छे से। चलिए, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर ये वाला लेक्चर आज के लिए वाइंड अप, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल। बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा करने में। चलिए, तो अभी मैं फाइनली चलिए पहले एक क्वेश्चन आपको बताते हैं पैरेलल का, ठीक है, फिर हम लोग इसके मल्टीपल क्वेश्चंस पे आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक आपका सर्किट डायग्राम है, वही वैसा ही बनाते हैं जैसे हमने पहले बनाया था। अभी इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम। ये मैंने 2 रेजिस्टेंस लिए, ये 2 रेजिस्टेंस लिए और कनेक्ट कर दिए, ठीक है। 2 जब रेजिस्टेंस ली, इसको मैंने ले लिया सपोज 12 वोल्ट की बैटरी है, ये की लगा दी हमने, ये सपोज 2 ओम है, ये सपोज 6 ओम है, ठीक है। अब फिर से मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, फाइंड आउट द करंट इन द सर्किट, करंट, ठीक है। पहले लास्ट क्वेश्चन में भी, सीरीज में भी मैंने यही पूछा था, अभी भी यही पूछती हूँ कि फाइंड आउट द टोटल करंट। टोटल करंट आपको फाइंड आउट करना है बेटा। टोटल करंट अगर आपको निकालना है तो आपको पहले तो रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि V आपको पता है, आपको टोटल रेजिस्टेंस अभी नहीं पता है। तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट टोटल रेजिस्टेंस। चलिए, टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। टोटल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए, R1 मान लेते हैं ये है, तो R2 की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। तो 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6, यही करेंगे, 1/2 प्लस 1/6। चलिए, अब इसको करते हैं, देखिए क्या करेंगे, ठीक है। तो ये आया 1/R इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं, 6 एलसीएम आया, दिस विल बी 3 प्लस 1, आंसर क्या आया 4, राइट, 4/6, दिस विल बी 2/3। देखिए 1/R इज इक्वल टू 2/3। बेटा आपके पास 1/R की वैल्यू आई है, R नहीं आया,
दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 3/2 मतलब 1.5। ठीक है, आर निकल गया। अब क्या करना है आपको, निकालना क्या, क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, टोटल करंट, ओम्स लॉ लगा दीजिए, क्योंकि ओम्स लॉ ही वो तरीका है जिससे हम इसको निकाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बताइए क्या होता है। ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू आर आई। V की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है भाई, ये रहा 12 वोल्ट। R हमने निकाल लिया, ये रहा 3/2, और I आपको फाइंड आउट करना है ना। चलिए क्या करें, मल्टीप्लाई करें 24 इसको इधर ले गए, इसको नीचे लेके आए, 3 इज इक्वल टू आई, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 8 एम्पियर। आंसर आ गया। सिंपल है ना, मजा आया। यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। तो ये हमारे क्वेश्चन हुए सीरीज पैरेलल को इंडिविजुअली अलग अलग हम कैसे करते हैं। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा सीरीज कनेक्शन, हम लोगों ने पढ़ा पैरेलल कनेक्शन, और सीरीज के केस में बेटा आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है क्या। दो चीज़ें आपको एक बार बिल्कुल फाइनली आपको मैं क्लियर कट बताती हूँ, दैट्स क्वाइट सिंपल। हम लोगों ने आज क्या पढ़ा है, एक इसका जस्ट समरी लिखते हैं। सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा दैट इज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और होता क्या है इसमें, रेजिस्टेंस जो होती है ओवरऑल इंक्रीज करती है ना। और पैरेलल के केस में जो हमने पढ़ा, पैरेलल के केस में बेटा जो आपने पढ़ा दैट इज 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और इसमें जो हमारी रेजिस्टेंस होती है बेटा वो हमारी डिक्रीज करती है। ठीक है, दिस इज आवर कंक्लूजन फॉर टुडे। सो दिस वाज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। होप यू गॉट इट, एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी you can just ask and mention your question in comment box. Okay, so hope it is clear to everyone. Okay, bye bye, take care my dear students. In next class we will learn about numericals of these particular topics. Okay, bye bye, take care.